आधुनिक तकनीक से शिक्षा यहाँ पे है दी जाती, अनुभवी गुरुओं की शिक्षा नहीं। स्कूल विद्योदय आज है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन विद्योदय इंटरनेशनल स्कूल, बच्चा पार्टी ने किया पार्टिसिपेट। बढ़िया। नमस्कार। चलो तुम लोग ऐसे देखती रहना, थोड़ा थोड़ा पीछे। अरे शुक्ला जी, एरिया के बाहर घूम रहे हो? आपके नाम का FIR करवाएंगे। नाइस अरेंजमेंट। इस बार पहले से बेटर है, लास्ट टाइम से ठीक है इस बार। दो दिन का है। फुल हो गया क्या? हाँ। खाली तो है, यहाँ बैठोगी तो दिखाई देगा। वहाँ नहीं चलना है, वहाँ आगे नहीं खाली क्या? यहाँ से निकाली हुई। Thank you, sir. Now I request our principal, Mr. Hemant Bhairam, sir, to felicitate our director, Dr. Nilesh Rauka, sir. Please, sir. Infrastructure and industrial growth, few leaders have left an indelible mark like Mr. Vijay Chhabra. A chartered accountant by profession, Mr. Chhabra qualified in 1992 and began his journey in the cement industry in 1993 with Vikram Cement, Neemuch. Over the past 32 years, his career has been a story of vision, execution and unwavering commitment to sustainability and community development. Starting as a finance and accounts professional, Mr. Chhabra spent more than 13 years mastering the financial backbone of operations before stepping into roles that demanded strategic leadership. His transition to project management came with the Greenfield project at Kotputli Cement Works, where he successfully navigated the complex process of land acquisition and village rehabilitation, a challenge that tested both his managerial acumen and his human-centric approach. In 2015, he moved to Jharsuguda Cement Works in Odisha, where his focus shifted to driving productivity, quality and delivery benchmarks. But it was in 2017
as project head of the Dhar Greenfield project that Mr. Chhabra truly set global standards. Under his leadership, the 3.6 MTPA Dhar plant was commissioned in a record 363 days, compared to the industry norm of 600 days and with zero safety incidents. This achievement not only created a global benchmark but also demonstrated cost efficiency, completing the project at nearly 65% of the typical investment, by none other than Mr. Kumar Mangalam Birla. His success did not stop there. Mr. Chhabra meritoriously executed Dhar Line 2, a brownfield manufacturing facility with a capacity of 4 MTPA, and later commissioned the Dhule Grinding Unit, a greenfield project with a capacity of 1.8 MTPA, both without a single sewage, and implemented rainwater harvesting and mineral conservation practices. His vision. Respected SDM sir, all management committee members of Vidyodaya School, my dear teachers, parents, students and distinguished guests. Today I really feel honored to be part of this annual day celebration of Vidyodaya School. It gives me a sense of proud and joyful to be amongst you all. Friends, school is just not a place of हाँ प्रभु, इस बार तो देवलोक में भी उत्साह की तरंगे उठ रही है। माता, इस वर्ष का कुंभ योग अत्यंत ही विशेष है। समय अनुकूल, ग्रह अनुकूल और पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा उतरने वाली है। सही कहा नारायण, कुंभ केवल स्नान नहीं, यह तो अमृत मंथन की स्मृति है, सत्य, तप और आत्मज्ञान की यात्रा है। नारद जी, इस बार कुंभ का केंद्र कौन सा पवित्र स्थान होगा? माता, इस बार कुंभ उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर, जहाँ हर बूंद शिव कृपा से पावन है, जहाँ समय भी ठहर कर तप करता है। तो फिर यह आवश्यक है कि हमारे गण, ऋषि, मुनि, योगी सभी वहाँ उपस्थित हो, ताकि वह मानवता को योग, ज्ञान और
व्यक्ति के लिए सहारा बन के आते हैं। वे हर एक व्यक्ति को प्रेम बांटते हैं, जात पात को मिटाकर सबको समान भाव से जोड़ते हैं। ऊंट और रेत का मेल बेहद सुहावना लगता है और लोग मिलकर रामदेव जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आकाश में जय जयकार की आवाज गूंजती है और धरती स्वयं कहती है, बाबा हमारा। जो व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान से उनका नाम स्मरण करता है वह जीवन में सही मार्ग पाता है। रामदेव जी का नाम मिट्टी में भी सम्मान का प्रतीक बन जाता है। वे भक्ति और दान के अविरल स्वरूप हैं और हर दिल में अपने प्रकाश और करुणा का दीप जलाते हैं।
अरे नारायण नारायण, निमाड़ राजस्थान। नारायण नारायण। अब समय है इस दिव्य उत्सव को पूरे संसार के सामने प्रस्तुत करने का, तो तैयार हो जाओ, कांतारा की आत्मा अब मंच पर प्रकट होने वाली है। May I have your attention, please? जंगल बोलते हैं, समुद्र गाते हैं और धरती की हर सांस पुकारती है। देव उतरता है देह में, भक्ति बनकर, अग्नि बनकर, शक्ति की ज्वाला धधकती है। जब ढोल की धुन गरज उठती है तो आंख में दीपक जल उठते हैं। यह केवल नृत्य नहीं, यह आवेश है जहां देव स्वयं चल देते हैं। कांतारा की पवित्र धरती पर हर श्वास में गूंजता है गौरवगान। प्रकृति, प्राण और देव मिलकर रचते हैं अद्भुत संधान। नमन उस शक्ति को जो मानव को देव बना देती है और भूता कोला की पावन ज्वाला धरती को स्वर्ग बना देती है।
स्वयं देव भी भाव विभोर हो जाए। देवर्षि, तुम्हारे स्वर में एक अलग ही कंपन है। ऐसा क्या देखा तुमने पृथ्वी पर? देवी, पृथ्वी पर शिव भक्ति का ऐसा ज्योतिपुंज देखा जो 12 दिशाओं में 12 रूपों में चमकता है। उन्हें ही लोग 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग मेरे अनंत प्रकाश के स्वरूप है नारद। जो भक्त मेरे इन्हीं रूपों में दर्शन करके अज्ञान के अंधकारों से पार हो जाते हैं। देवर्षि, पृथ्वी के लोग इन 12 ज्योतिर्लिंगों को किस दृष्टि से देखते हैं? प्रभु, हर ज्योतिर्लिंग एक कहानी है, एक तीर्थ है, एक ज्योति है जो सीधे भक्त के हृदय में उतरती है। महाकाल, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिका अर्जुन, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर और रामेश्वर, ये सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था का अनंत दीप है। पिताश्री, पृथ्वी लोक के भक्त सबसे ज्यादा किस ज्योतिर्लिंग को प्रिय मानते हैं? वह भक्त की भावना पर है गजानन। जिस ज्योति में उन्हें शांति, जिसमें शक्ति और जिसमें मुक्ति मिलती है, वही उनका प्रिय हो जाता है। क्योंकि मैं 12 नहीं, अनंत हूँ। ज्योतिर्लिंगों में मेरा अंश भी छिपा है। भक्त जब शिव की आराधना करते हैं तो मेरा करुणा भाव स्वयं ही उन पर बरस जाता है। तो ये तय है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा धरा से स्वर्ग तक और स्वर्ग से ब्रह्मांड तक फैल चुकी है। और प्रभु, इस दिव्यता को अब पृथ्वी के मंच पर प्रस्तुत किया जाने वाला है। भक्ति की ज्योति को उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यह तो वही भावना है जहाँ परिवार ही मंदिर बन जाता है और जहाँ स्नेह ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। नारद, तुमने सही कहा। भारत के दिल में भक्ति और प्रेम साथ साथ बसे हैं। इसीलिए तो हर शुभ कार्य पहले माता पिता के आशीर्वाद से ही शुरू होता है। उनका स्पर्श ही मंगल है। जब किसी संस्कृति में माता पिता को देवों से भी बढ़कर माना जाए, वह भूमि तो स्वयं देवी का रूप बन जाती है। और इसी सत्य को मनुष्य न सिर्फ मानता है बल्कि जीता भी है। वहाँ बच्चे कहते हैं भगवान तो है ही, पर हमारे लिए सबसे पहले माता और पिता ही भगवान है।
से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देवभूमि के दान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। सूर्योदय